Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have seen few of the examples and also some theorems. So now we are done with all the example portion and the theorems. Let us directly move on to the last exercise, that is exercise 10.5. So you have to understand it very carefully and see how to apply on the theorems over to the questions, right? So you can see question number first of exercise 10.5 here is that in figure 10.36 this given here A, B and C are 3 points on a circle. So आप देख सकते हैं यहाँ पे A, B और C 3 points है इस circle के ऊपर with center O. So आप इस देख सकते हैं circle का center क्या है O. Now such that angle BOC, let me just mark that. So आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल BOC यहाँ पे मैंने मार्क किया है, that is given to us as 30 degree and angle AOB, let me just mark that. So AOB, so this is also given as 60 degrees. अब यहाँ पे if D is a point on the circle other than the arc ABC, so आप देख सकते हैं ये A, B और C को मिला के क्या बन रही है, यहाँ पे arc बन रही है ABC. So let me just denote it like this. So यहाँ पे ABC क्या है, arc. Now इन 3 points के अलावा other than this arc AB यहाँ पे circle के ऊपर एक और point है D. Now you can see इस D point पे ये जो arc है ABC क्या एंगल बना रही है, ADC, right? So अब यहाँ पे मुझे इसी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल ADC. So how we will find out the value of angle ADC? So to find here is एंगल ADC. So कैसे हम निकालेंगे इस एंगल ADC को? नाउ सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो आर्क ABC है वो सेंटर पे क्या एंगल बना रही है, AOC, एंड यू कैन सी देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बना रही है दैट इज ADC. देन वी नो दैट जो फ्रॉम थ्योरम 10.8 that the angle subtended by the arc at the center is double then it subtend the angle at the remaining part of the circle, right? So you can see we know from theorem 10.8 that angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle. Getting my point? So that means that angle AOB, you can see the arc ABC subtending the center angle, that is AOC, you can see AOC will be twice the angle subtended by this arc ABC at D point, that is ADC, right? So this is what we have acquired from theorem 10.8. So आप देख सकते हैं ये जो arc ABC है सेंटर पे क्या एंगल बना रही है, AOC. अब सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, डबल होगा, that is made by the arc at the remaining part of the circle, that is ADC. So आप देख सकते हैं सेंटर पे जो एंगल है टोटल आप देख सकते हैं 60 plus 30 कितना बन रहा है, 90. So let me first write that. So here let me just show you that angle AOC here is angle AOB plus angle BOC. So आप देख सकते हैं 60 plus 30 degree आपके पास टोटल एंगल AOC कितना बन गया, let me just correct that. So angle AOC will be 90 degrees, right? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे AOC यहाँ पे पता चल गया कितना है, 90. So मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. So we will get the value of angle ADC, right? So let me just give this equation number first and let me just make some space above. Now simply we are going to substitute angle AOC in equation number first. So substituting angle AOC equal to 90 in equation number first, we have, अब यहां पे आप देख सकते हैं एंगल AOC की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, 90 डिग्री, राइट, इक्वल टू
2 into angle ADC, right? So that is D. So आप देख सकते हैं ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, so 90/2 that will be the value of angle ADC. So 245 से 90, so आपके पास कितना आ गया angle ADC, that is 45 degrees, right? And this is what we have to find out in this question. So ये angle कितना आ गया आपके पास 45 degrees, right? So half the angle subtended by the arc at the center. So center पे 90 बन रहा था, तो यहाँ पे क्या बनेगा 45, that is simply the half of the angle subtended by the arc at the center here, right? So you can see by using theorem 10.8, you can see how we have just extracted the value of angle ADC required in the question, right? So that was all in the first question here. So students, let us move on to the next question now. So you can see question number 2 of exercise 10.5 is a chord of a circle is equal to the radius of the circle. So यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कोड है किसी सर्कल की जिसकी लेंथ जो है रेडियस के इक्वल है उसी सर्कल की, राइट? Then you can see find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. So हमें फाइंड करना है एंगल जो कि ये कोड है बनाएगी माइनर आर्क के ऊपर एक पॉइंट पे और मेजर आर्क के ऊपर एक पॉइंट पे, राइट? सो इस क्वेश्चन का हमें जो डायग्राम है वो नहीं गिवन, सो we have to draw the diagram according to the given condition. So यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, you can see the first step. Then यहाँ पे एक कोड बनाई मैंने PQ, राइट? अब आपको क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो कोड है PQ, ये एक तो मेजर आर्क के ऊपर एक पॉइंट पे एंगल बनाएगी, दैट विल बी PAQ हियर यू कैन सी, और एक माइनर आर्क के ऊपर पॉइंट पे एंगल बनाएगी, सो दैट विल बी PBQ. सो आप देख सकते हैं माइनर आर्क पे एंगल बन रहा है PBQ एंड मेजर आर्क पे एंगल बन रहा है PAQ, और हमें इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, राइट? एंड यहाँ पे हमें ये चीज गिवन है कि ये जो PQ है विच इज द कोड हियर, इसकी लेंथ जो है वो किसके इक्वल है? रेडियस के, राइट? सो इफ हियर मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की है दैट आई हैव जॉइंड द सेंटर O विद द पॉइंट P एंड Q विच आर द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस कोड, राइट? सो दैट विल बी OP एंड OQ. अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये OP और OQ क्या है? इस सर्कल की रेडियस है, राइट? एंड ऑल्सो यहाँ पे PQ लेंथ जो है कोड की वो भी क्या है? रेडियस की लेंथ के इक्वल है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों जो लेंथ है आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई, राइट? सो दिस इज व्हाट it is given in the question first. So let me just start off the solution here. So आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना आ गया, you can see with the help of the question. So सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, then माइनर आर्क पे एक पॉइंट लिया, मेजर आर्क पे एक पॉइंट लिया, राइट? Then ये कोड ली जो कि माइनर आर्क पे एंगल बना रही है PBQ और मेजर आर्क पे एंगल बना रही है PAQ, and that is what we have to find out in this question, right? Let me just correct that. So this is what we have to find out. So let me just start off here. So सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन की, that is join OP and OQ, right? So also यहाँ पे हमें ये भी पता है that OP is equal to OQ is equal to PQ, right? OP और OQ क्या है यहाँ पे? रेडियस, और PQ भी किसके इक्वल है? रेडियस के. So these are equal and they are the radius of the circle. So अगर आप ध्यान से देखें, so it somewhere just resembles the example that I have told you. So यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में बताया था, ये जो आपको ट्रायंगल मिल रहा है यहाँ पे ये वाला, so इसकी तीनों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल है, and we know that equilateral triangle have all the three sides equal. So यहाँ पे ये जो OPQ जो है ये क्या हो गया? एक equilateral triangle हो गया. So triangle OPQ is a equilateral triangle. Getting my point? अब आगे बढ़ते हैं. You can see, तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों एंगल्स कितने होंगे? 60 डिग्री के, राइट? दैट इज ऑल्सो वी नो, आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो इन द एग्जाम्पल टाइम. सो यू कैन सी यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बना रही है, यू कैन सी दिस माइनर आर्क, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट, सो दैट इज POQ. सो यहाँ पे हमारे पास एंगल POQ जो है वो कितना आ गया? 60 डिग्री, राइट? सो आप देख सकते हैं ये माइनर आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है दैट इज डबल द एंगल मेड बाय द माइनर आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द
सर्कल, राइट। सो रिमेनिंग पार्ट पे इस पॉइंट ए पे क्या एंगल बना रही है, ये माइनर आर्क, दैट इज पी ए क्यू, राइट। सो हमें ये भी पता है ऑल्सो फ्रॉम थ्योरम 10.8, I'm not going to write again the whole theorem, just I'm telling you that theorem 10.8 की हेल्प से हमें ये पता है that the angle subtended by an arc at the center is, you can see, double the angle made by the arc at the remaining part of the circle. So you can write that line here. So that means कि ये जो angle POQ है ये क्या होगा, डबल होगा इस एंगल PAQ के, right? And we know angle POQ, that is 60 degree. So this implies 60 degree is equal to twice into angle PAQ. अब इसे 2 मल्टीप्लाई में से यहां शिफ्ट हो जाएगा, कहां जाएगा, डिवाइड में. So let me just make some space here. Now you can see if I just solve this, so 60 upon 2, that will be angle PAQ, right? So 230 is 60. So हमारे पास यहाँ पे angle PAQ, let me just correct that. कितना आ गया आपके पास, 30 डिग्री, right? So हमें ये एंगल पता चल चुका है, that is 30 डिग्री. So that means one part of this question is solved here. Now हमें क्या फाइंड आउट करना है कि माइनर आर्क के ऊपर ये जो पॉइंट है यानी PBQ, ये एंगल कितने का होगा, राइट? सो लेट मी जस्ट शो यू समथिंग हियर. सो इफ आई जस्ट रीड्रॉ दिस सर्कल हियर, सो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे पॉइंट P और Q है. नाउ यू कैन सी इस मेजर आर्क के ऊपर पॉइंट A है, राइट? सो यहाँ पे ये जो है मेजर आर्क है PAQ, राइट? सो यू कैन राइट इट लाइक दैट PAQ इज द मेजर आर्क. अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो PAQ मेजर आर्क है वो सेंटर पे क्या एंगल बना रही है. यू कैन सी ये मेजर आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगी ये वाला, राइट? नाउ लेट मी जस्ट टेल यू कि ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल. इफ यू जस्ट रिमेंबर, आई हैव आल्सो टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट? सो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो POQ ये वाला एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल, ये मेजर आर्क सेंटर पे बना रही है, राइट? नाउ लेट मी जस्ट टेल यू कि हमें ये भी पता है फ्रॉम थ्योरम 10.8 दैट द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. सो आप देख सकते हैं ये जो मेजर आर्क PAQ है वो रिमेनिंग पार्ट पे, ये वाला रिमेनिंग पार्ट है, आप देख सकते हैं इस मेजर आर्क के अलावा. सो इसके ऊपर पॉइंट B है, उसके ऊपर कितना एंगल बनाएगी, दैट विल बी सिंपली हाफ द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर, क्योंकि हमें पता है दैट द सेंटर angle is double the angle made by the arc at the remaining part of the circle. So यहाँ पे सबसे पहले हमें ये रिफ्लेक्स एंगल POQ पता होना चाहिए, राइट? सो हम ये रिफ्लेक्स एंगल POQ कैसे निकालेंगे, लेट मी जस्ट टेल यू. सो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं. यू कैन सी दैट मेजर आर्क, लेट मी जस्ट क्लियर दैट. सो मेजर आर्क PAQ subtend reflex angle POQ at the center, right? So that is clear to you. Now let me just tell you to how to find the reflex angle. So reflex angle POQ can be calculated by 360 degree minus angle POQ. यहां पे मैं आपको बता देता हूं ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का, राइट? सो यानी कि अगर मैं सिर्फ रिफ्लेक्स एंगल निकालना चाहता हूं ये वाला, सो वो कैसे निकलेगा, टोटल 360 में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं, एंड वी नो एंगल POQ हियर दैट इज 60 डिग्री, राइट? सो यानी कि अगर मैं पूरे 360 में से अगर ये 60 डिग्री यानी कि एंगल POQ माइनस कर दूं, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल POQ, राइट? सो लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट एंगल POQ 60 degree here. So you can see 360 degree minus 60 degree, that will give you the reflex angle POQ. So 360 minus 60, that will be 300. So आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये वाला एंगल कितना आ गया, 300 डिग्री, राइट? नाउ आप देख सकते हैं, मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे ये जो PBQ एंगल होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ दिस रिफ्लेक्स एंगल POQ. So let me just write that. Now you can see angle PBQ will be half of reflex angle
POQ. Now that can be written by theorem. Let me just correct the spell of the theorem. 10.8. So यहाँ पे मैं पूरी थ्योरम नहीं लिख रहा हूं, but we know that the angle made by the arc at the center is double the angle subtended by it at the remaining part of the circle. So यानी कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये वाला, ये डबल होगा इस एंगल के, और यू कैन सी ये जो एंगल है वो हाफ होगा सेंटर एंगल पे. So that means we know the reflex angle POQ is 300. So its half will be, you can see 300 का half कितना होगा 150. So 2 150 से 300. So finally we have got angle PBQ as 150 degree, which is required here. You can see. So यानी ये एंगल कितने का हो गया 150 का, और ये एंगल 30 डिग्री का, right? And this is what we have to find out in this question, that this arc made angle at minor arc and major arc. So these are the angles, right? So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now. So you can see question number 3rd of exercise 10.5 is, you can see in this given figure, you can see angle PQR is 100 degrees, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे angle PQR कितना है 100 degrees. Now where PQ and R are points on a circle. So आप यहाँ देख सकते हैं ये P, Q और R जो है ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं on the circumference. You can see with center O. So इस सर्कल का सेंटर क्या है आप देख सकते हैं, that is O here. Now we have to find out angle OPR. So यहाँ पे मैंने मार्क किया है, आप देख सकते हैं OPR, ये वाला एंगल, राइट? सो हमें इसको फाइंड आउट करना है. यू कैन सी. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो सबसे पहली चीज, आई एम गोइंग टू यूज अ थ्योरम हियर. यू कैन सी द थ्योरम 10.8 that says that the arc subtend the angle at the center is double the angle subtended by it at the remaining part of the circle, right? So अब इसमें ये जो major arc है PR, ये वाली, right? So ये जो है इस सेंटर पे यू कैन सी क्या एंगल बना रही है, ये वाला एंगल. गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि रिफ्लेक्स एंगल POR, राइट? अब इसमें ये वाली जो आर्क है मेजर आर्क, वो सेंटर पे क्या बना रही है एंगल, ये वाला, यानी कि द रिफ्लेक्स एंगल. अब बात आती है कि जो सेंटर पे एंगल बनाती है आर्क, दैट इज डबल द एंगल मेड बाय दैट आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. सो अगर मैं इस मेजर आर्क को छोड़ दूं इस सर्कल की, सो रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, ये PQR. सो अब इसमें यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट पे ये Q पॉइंट है. सो ये जो मेजर आर्क PR है, ये Q पॉइंट पे कितना एंगल बना रही है, दैट इज 100, राइट? सो यानी कि जो सेंटर पे एंगल होगा वो इस एंगल के क्या होगा, डबल होगा, राइट? सो we know, let me just start off the solution first. So we know from theorem 10.8 that angle subtended by an arc, let me just change the marker first, at the center of the circle is double the angle subtended by it at the remaining part of the circle, right? So अब इस रिमेनिंग पार्ट में जो पॉइंट लाई कर रहा है उस पे क्या होता है, सेंटर के हाफ होता है. आप चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट? और यू कैन से कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा द एंगल मेड बाय दैट आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. सो हियर, सो दैट इज, वी कैन से दैट एंगल POR, reflex angle, right, is twice the angle PQR, right? So आप देख सकते हैं ये जो मेजर आर्क है PR, ये रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा एंगल बना रही है, PQR. सो इसका डबल हो जाएगा द सेंटर पे जो रिफ्लेक्स एंगल POR फॉर्म हो रहा है, राइट? सो दैट विल बी, यू कैन सी 2 into, आप देख सकते हैं यहाँ पे PQR कितना है 100. सो 2 into 100 दैट विल बी 200 डिग्रीज, राइट? सो हमारे पास ये वाला एंगल आ गया 200 डिग्रीज. अब बात करते हैं हमें कौन सा एंगल निकालना है, OPR.
सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये OPR एक ट्रायंगल बन रहा है। लेट मी जस्ट शो यू राइट हियर। सो ये ट्रायंगल मैंने अलग से यहां बना लिया, आप देख सकते हैं ये P है, ये R है एंड दिस इज O। अब मुझे पता है कि ये ट्रायंगल के अंदर ये OP और OR क्या है, आप ध्यान से देखें तो रेडियस है, राइट। दैट मीन्स ये लेंथ दोनों इक्वल है, यानी कि OP जो है वो किसके इक्वल है, OR के। सो दैट मीन्स कि इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। समझ में आ रहा है आपको, ये प्रॉपर्टी है। यू कैन सी दैट द एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal, right? So let me just first write that now. In triangle OPR we have, you can see angle, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पे sides लिख लेते हैं, that OP is equal to OR. So आप देख सकते हैं यहां पे इस ट्रायंगल के अंदर OP OR के इक्वल है, and the reason is they are the radius of the circle, same circle, right? So अगर OP OR के इक्वल है, so let me first make some space above. So if OP is equal to OR, so इनकी अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. So angle OPR is going to be equal to angle ORP, right? So let me just write that. So this implies angle OPR is equal to angle ORP. So the reason is angles opposite to the same side are same. ठीक है, or you can say also equal. You can also write equal here to the equal sides. Whatever you like, same or equal, they are both the similar things, right? So यहाँ पे इस वजह से हमारे पास you can see अगर OP OR के इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे by the property here, right, of a triangle. Now जैसे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, so let me just assume as x here, right? So मैंने दोनों एंगल्स को क्या assume कर लिया, x assume कर लिया. So ये भी x हो गया, ये भी x हो गया. अब मुझे पता है that ये तीनों एंगल्स का सम इस ट्रायंगल के क्या होगा, 180 के, right? So by angle sum property, let me just correct that. So by angle sum property, let me just make some space below. So now you can see by angle sum property हमें ये पता है that angle OPR plus angle ORP plus angle POR is equal to 180 degrees, right? अब यहां पर बात आती है कि अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, so then we can just simply put them x and this angle, right, equal to 180. So अब यहां पर हमें ये वाला एंगल POR कैसे पता चलेगा? Let me just tell you that, let me just give it equation number first here. Now हमें ये पता है कि ये जो पूरा एंगल है, ये वाला कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का. So let me first write that. Now we know that complete angle is of 360 degrees, right? So यानी ये टोटल एंगल कितना हुआ, 360 का. अब आप देख सकते हैं ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ये कितने का था, 200 का. सो अगर कंप्लीट एंगल में से मैं अगर ये रिफ्लेक्स एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये एंगल POR आ जाएगा, which we can substitute right here. So let me tell you, then you can see angle POR क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल POR, राइट. सो यानी कि अगर मैं रिफ्लेक्स एंगल 360 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास POR आ जाएगा, राइट. सो दैट विल बी, लेट मी फर्स्ट मेक सम स्पेस हियर. So this implies, you can see angle POR will be 360 degree minus, you can see what was the reflex angle POR, that is 200. So 360 minus 200, that will be 160 degrees, right? So हमारे पास POR एंगल आ गया. So let me just tell you कि ये एंगल कितना हो गया हमारे पास, 160 डिग्री. यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ शो कर रहा हूं मैं आपको. अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने ये लिखी इक्वेशन फर्स्ट. सो यहाँ पे मैं इस एंगल POR को कहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यहां पर. सो नाउ from equation number first we have, अब यहां पे आप देख सकते हैं OPR and ORP ये दोनों एंगल्स
एक दूसरे के इक्वल हैं एंड मैंने उसको क्या एज्यूम किया x, तो दोनों की यहां पे क्या लिख दूंगा मैं x, सो x प्लस यू कैन सी एंगल पी और कितना हो गया आपके पास 160 इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। मैंने आपको बताया यू कैन सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है ऑलवेज 180 डिग्री, सो वी हैव रिटन दैट, सो x प्लस x क्या हो गया आपके पास 2x प्लस 160 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जैसा ये प्लस का 160 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, सो दिस इंप्लाइज यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 160, सो 180 माइनस 160 कितना होगा आपके पास, दैट इज 20। देन यू कैन सी अगर 2x किसके इक्वल आ जाएगा 20 के, सो ये 2 डिवाइड में जाएगा, सो दिस विल गिव यू the value of x as you can see 20 upon 2, that is 10 here, right? So let me just correct that first, so that will be 10, so यहाँ पे हमारे पास you can see x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10 डिग्री, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एंगल है you can see this which we were finding out, ये कितना निकल गया हमारे पास 10 डिग्री, right? And this is you can see what we have to find out in this question, also this will also be 10, but हमें यहाँ पे ये निकालना था and that is what we have got here. So you can see the value of angle OPR, you can see you can also write angle OPR is equal to 10 degree, right? So you can see this is how you have to solve such type of questions, just you have to remember the theorem you have to use according to the condition here, right? So that was all in this question here.